Hello everyone. So today we will see this amazing plugin Swiss Knife. आज हम इस Swiss Knife plugin के सारे ऑप्शंस कवर करेंगे। आप देखोगे कि इसमें कई सारे टैब्स होते हैं एंड हर एक टैब के अंदर आपको कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं। इन्हें कहाँ पे एंड आप कैसे यूज कर सकते हो आज के हम इस ट्यूटोरियल में ये जानेंगे। So let's start with our first tab which is Parallax Group. So here I have this images. राइट अगर हमें पैरेलेक्स इफेक्ट क्रिएट करना हो तो हम सारी लेयर्स को 3D करते हैं, देन उन्हें 3D स्पेस में हम अरेंज करते हैं लाइक दिस। हमें हर एक लेयर को अरेंज करना होता है, राइट। जब हम इसे अरेंज करते हैं तो यू कैन सी कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है या फिर आपकी जो लेयर है उसका पोजिशन एज वेल एज स्केल भी चेंज हो जाता है, जिसे हमें हर बार मेंटेन करना पड़ता है। बट स्विस नाइफ में हमारे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है जिसे आप एक ही क्लिक में आप ये पैरेलेक्स इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो। आपको जस्ट सारी लेयर सिलेक्ट करना है, देन यू कैन सी यहाँ पे एक पैरेलेक्स 3D इफेक्ट है। जस्ट सिंपली क्लिक ऑन दिस एंड यू विल गेट द पैरेलेक्स इफेक्ट। आप देखोगे कि आपके यहाँ पे एक कैमरा क्रिएट हो चुका है एंड सारी लेयर्स 3D में अरेंज हो गई है एंड इस प्लगइन ने आपका स्केल एज वेल एज पोजीशन को भी अपने आप ही एडजस्ट कर दिया है। सो ये पूरी लंबी प्रोसेस सिर्फ एक क्लिक में आप कर सकते हो। नाउ यू कैन सी कि इसने आपको नल क्रिएट करके दिया है जिसपे आप की लगा के एनिमेशन कर सकते एंड यू कैन सी कि देयर इज अ पैरेलेक्स इफेक्ट इन these layers. So this is how you can create parallax effect in a single click. Now let's see second option which is parallax 2D. Sometimes you don't want 3D layers, so you can use this parallax 2D effect. Simply select all the layers and click parallax 2D. It will create a null, right? By animating this null, you can see the parallax effect. And in effect control, you can edit these settings if you want, like the center of null, range of the parallax and randomness. So this is our second option which is parallax 2D. Now let's see third option which is extruder. This option will extrude your layers. Simply select your layer and click extruder. Now rotate and you can see your layer is extruded. From here in effect control you can increase the depth and as well as color also. You can select multiple layers and click extrude. It will extrude all your layers. And we have this null from where we can increase the extrude size as well as change the color. So our next option is stack. By using this option you can stack your images or layers. इस ऑप्शन से आपकी जो लेयर्स है वो एक के ऊपर एक अरेंज हो जाएगी, यानी इन अ स्टैक मैनर। लेट्स सी हाउ। सिंपली सिलेक्ट ऑल योर लेयर्स एंड क्लिक स्टैक। आपको एक नल मिल जाएगा। बाय यूजिंग दिस नल यू कैन सी कि my layers are arranged. From here you can see कि my layers are stacked on each other. जो भी आपकी लास्ट लेयर होगी उस पे आपका प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगा एंड जो सबसे फर्स्ट लेयर होगी उस पे सबसे कम। लाइक अगर आप रोटेशन ऑफसेट करते हैं तो यू कैन सी कि आपका जो सबसे लास्ट लेयर है उस पे ज्यादा रोटेशन हो रहा है, देन उससे कम इस लेयर पे, देन इससे कम इस लेयर पे एंड फाइनली इस पे सबसे कम। सो दिस इज हाउ यू use stack option. Now we have more option here, isometric and carousel, right? If you keep on this option and then select stack, it will create stack in an isometric manner. You can see my layers are arranged on each other in an isometric manner, and from null you can create animation. Now let's see this carousel option. If you keep this option on and then click and then select all the layers, click on stack, it will create this type of animation and also place your objects like this in a 3D manner. So by using this option you can create such type of animation. So now let's see our second group which is interaction group. In this हम सबसे पहले ये वाला ऑप्शन देखेंगे which is interact. So मेरे पास कुछ ये shapes है, right? इसमें मैं स्केल पर एनिमेशन क्रिएट करूंगा। Okay, something like this. Then I will select all the keys and in last select my master. Then click on interactor. So now you can see कि जब ये मेरा मास्टर इन ऑब्जेक्ट्स के क्लोज जाएगा तो वो उससे इंटरेक्ट करेंगे।
यानी मैंने जिस भी प्रॉपर्टी पे की लगाई है वो उससे इंटरेक्ट कर रहा है. द मोर क्लोजर इट इज, द मोर इट विल इंटरेक्ट, like this. And by using this null, you can select out radius as well as in radius. Now let's see next option, which is depender. Depender also work in the same way. Depender नाम से ही समझ में आता है कि इसमें आपका एक एनिमेशन दूसरे एनिमेशन पे डिपेंड होगा. Let's see how. So I have these two objects. इस इलिप्स पे मैं स्केल प्रॉपर्टी पे की लगाऊंगा. On in this layer, I will animate the position. तो हमने इन दो शेप में एनिमेशन करा है. वन इज पोजीशन एंड वन इज स्केल. फर्स्ट मैं ये की सिलेक्ट करूंगा एंड क्लिक ऑन डिपेंडर, यानी इस पे मेरा इलिप्स का जो एनिमेशन है वो डिपेंड करे. क्लिक ऑन डिपेंडर. जैसे ही आप डिपेंडर पे क्लिक करोगे वो पिंक कलर का हो जाएगा एंड आपके पास ऑप्शन आएगा अप्लाई. देन आप सेकेंड ऑब्जेक्ट की कीज को सिलेक्ट करोगे एंड क्लिक ऑन अप्लाई. सो नाउ यू कैन सी कि बाय चेंजिंग this position the scale of ellipse is also changing. Means now let's see our, तो मैंने आई ब्लिंक का एक एनिमेशन क्रिएट किया है. नाउ वी विल सी आर नेक्स्ट ऑप्शन विच इज एनिमेट. सिंपली आपको की सिलेक्ट करना है, देन क्लिक ऑन दिस ऑप्शन एनिमेट. इट विल क्रिएट अ नल ऑन विच देयर इज अ मार्कर. सो अब आप इस मार्कर का यूज करके अपने एनिमेशन को रिपीट कर सकते हो. अगर आप यहाँ पे एक मार्कर ऐड करोगे तो आपका एनिमेशन रिपीट हो रहा है विदाउट कॉपी पेस्टिंग एनी कीज. डायरेक्ट मार्कर लेयर पे लगाने का शॉर्टकट है स्टार. तो जितनी बार भी आप मार्कर लगाओगे उतनी बार आपका एनिमेशन रिपीट होगा. सो दिस इज व्हाट एनी मार्कर डू. सो आप नल में इधर इफेक्ट कंट्रोल में एक रिवर्स एनिमेशन का ऑप्शन भी देखते हैं. लेट्स सी ये कैसे वर्क करता है. मैंने एक ट्रिम पाथ से बॉक्स आउटलाइन रिवील एनिमेशन क्रिएट करा है. सो मेरा ये एनिमेशन इन हुआ. नाउ आई कैन सिलेक्ट कीज, क्लिक ऑन एनी मार्कर, गो टू रिवर्स एनिमेशन एंड चेक बॉक्स ऑन. तो आपका एनिमेशन जो है वो रिवर्स हो जाएगा like this. So by using this grid offset option, you can create offset in animation. So let's see how. आपको सारी layers को select करना है, then click on grid offset. It will create a null. Now if you animate this null, you can see the offset in animation like this. Also you can increase the offset from offset control here. Now let's jump to our next option which is revolver. So let's see this revolver option in Swiss knife. Revolver option इंटरैक्टर की तरह ही यूज होता है, बट रिवॉल्वर में सिर्फ रोटेशन पर ही वो इंटरैक्शन काम आता है. Let's see how. सबसे पहले आप अपनी सारी लेयर सिलेक्ट करेंगे, देन एंड में आपका मास्टर सिलेक्ट करेंगे एंड सिंपली क्लिक ऑन रिवॉल्वर. नोट कि मैंने किसी भी प्रॉपर्टी पे की नहीं लगाई है. ओके, जस्ट सिंपली मैंने अपनी लेयर सिलेक्ट करी, देन एंड में आप आपका मास्टर सिलेक्ट करोगे एंड क्लिक ऑन रिवॉल्वर. सो यू कैन सी कि मेरा जो मास्टर है वो इन सब की वो सारी लेयर्स के रोटेशन प्रॉपर्टी से इंटरैक्ट कर रहा है लाइक दिस. सो रिवॉल्वर आपका इंटरैक्टर की तरह ही यूज होता है, बट इसमें सिर्फ वो रोटेशन प्रॉपर्टी से ही इंटरैक्ट करता है. नाउ वी विल जंप टू आवर नेक्स्ट ग्रुप विच इज प्लेस होल्डर ग्रुप्स. सो मेरे पास यहाँ पे कुछ इमेजेस है. इन सारी इमेजेस को मैं सिलेक्ट करूंगा, देन हम हमारा सबसे पहला ऑप्शन देखेंगे विच इज प्लेस होल्डर. हम एक इमेज को करके पहले देखते हैं कि इस ऑप्शन से क्या हो. लेट्स से मैंने एक शेप क्रिएट करा. नाउ आई वांट टू प्लेस दिस इमेज इनसाइड दिस बॉक्स. तो सिंपली यू हैव टू सिलेक्ट दिस इमेज, देन सिलेक्ट दिस लेयर एंड क्लिक ऑन प्लेस होल्डर. तो यू कैन सी कि आपका जो इमेज है वो एक कंपोजिशन क्रिएट हो चुका है अकॉर्डिंग टू द शेप लेयर आई हैव क्रिएटेड. एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आप यहां से आप अंदर की इमेज को एडजस्ट कर सकते हो. Now let's see our another option which is switcher. So switcher is mainly used for lip sync animation. So यहाँ पर मेरे पास multiple mouth है जो according to the vowels या letters के according create करे हैं. Like this is for L, this is for E. So let's see कि switcher क्या करता है. Simply आपको सारी layers को select करना है, then click on switcher. It will create a pre-comp and इस pre-comp में आपको एक option मिलेगा जहाँ से आप सारे माउथ को चेंज कर सकते हो. तो बाय यूजिंग दिस ऑप्शन यू कैन क्रिएट लिप सिंक एनिमेशन. नाउ लेट्स सी आवर अनदर ऑप्शन व्हिच इज अल्फा मैट. सो पहले हम एक इमेज पे ट्राई करके देखते हैं कि इस ऑप्शन से क्या होता है, ताकि आपको इजीली वो ऑप्शन समझ में आ जाए. सो बेसिकली ये आपका अल्फा मैट क्रिएट करता है लाइक दिस. यू कैन सी कि मेरा जो शेप लेयर था उससे इमेज को अल्फा मैट कर दिया. सो व्हेन यू हैव मल्टीपल शेप्स एंड इमेजेस यू कैन यूज दिस ऑप्शन टू क्रिएट अल्फा मैट.
Now let's see another amazing effect of this plugin, which is slideshow. Simply select all your layers and click on slideshow. It will create a slideshow animation. Let's put this in the center. Now let's jump to our next group, which is, so now let's see our last group, which is support group. First option is reorder. इस ऑप्शन से आप आपकी लेयर्स को रीऑर्डर कर सकते हैं. Let's see how. मैंने अपनी लेयर्स को कुछ इस तरह से अरेंज करा है. 1 2 3 4 5. तो टॉप मोस्ट मेरी लेयर है 5. ओके, नाउ इफ आई सिलेक्ट ऑल द लेयर्स एंड क्लिक ऑन रीऑर्डर, इट विल रीऑर्डर माय लेयर्स. आप देख सकते हो कि जो मेरा 5 जो सबसे ऊपर था वो नीचे आ चुका है in the bottom. So by using this option you can reorder your layers. Now let's see next option, which is Baker. By using this Baker option you can convert your expression into keyframe. Like I have used wiggle expression in scale, so I will click on this scale, then click on Baker. So this option will convert your expression into keyframes. Now let's see our another option, which is tangent. Let's say आपने कोई animation create करा है by using position property. Now when you select keys and then use tangent, it will create an arc for your path, and if you click with alt, it will give an upward arc for your path, and also you will get handles. Now let's come to next option, which is slicer. Now let's see now let's come to next option, which is slicer. ये option आपकी image को या फिर layer को slice कर देगा in rows and columns. Let's see how. Just select your option. Then here you can select rows, number of rows and also number of columns. Then click on slice. So now you can see कि आपकी जो image है वो slice हो चुकी है. It is divided into rows and columns. So this is how slice option works. Now let's see another option. अगर आपको अपनी लेयर को या इमेज को दूसरी इमेज से या लेयर से स्वैप करना हो तो यू कैन यूज दिस ऑप्शन स्वैपर. आपको सिंपली आपकी लेयर सिलेक्ट करना है, देन जिस लेयर से आपको स्वैप करना है वो सिलेक्ट करना है. ओके, देन क्लिक ऑन स्वैपर. तो यू कैन सी कि वो जो लेयर है वो स्वैप हो चुकी है, यानी रिप्लेस हो चुकी है किस इमेज से जो आपने प्रोजेक्ट विंडो में सिलेक्ट करी है. सो दिस इज हाउ यू यूज स्विस नाइफ प्लगइन. इसमें आपको कई सारे ऑप्शन मिलते हैं जिसका आप यूज करके अपना टाइम एज वेल एज वर्क फ्लो इंप्रूव कर सकते हो. सो ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोस के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो कमेंट में हमें बताइए कि आपको कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट लगा.